چلیں کہ موٹروے کے اطراف آج بھی دھند کا راج برقرار ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹروے کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ موٹروے M2 کو لاہور سے اسلام آباد تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹرویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ شہری دن کے اوقات کار میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ موٹروے M2 کو لاہور سے اسلام آباد تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور لاہور سے سیالکوٹ موٹروے کو بھی دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ موٹروے کے اطراف دھند کا راج برقرار ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے اس بارے۔ بالکل شہر لاہور میں دھند کی صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈینس فاگ جو ہے وہ شہر لاہور میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3 سے 4 دن پہلے شہر لاہور کے اندر جو ہے موسم بالکل صاف ہو چکا تھا۔ دھند کا جو سلسلہ تھا کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، لیکن گزشتہ 2 روز سے دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ شہر لاہور پہ دھند کے ڈیرے نظر آتے ہیں اور دھند کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ جتنے بھی لاہور سے ملحقہ ہائی ویز ہیں جس میں M2 M3 M4 M11 اور دیگر آتی ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ دھند کے دورانیے کے اندر جو ہے وہ ٹریول بالکل بھی نہ کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے تو دن کے اوقات میں ٹریول کریں، خاص طور پر صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک جب دھند کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر ٹریول بھی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ جو موٹروے حکام ہوتے ہیں یا موٹروے کی ہیلپ لائن نمبر ہے 130 اس پر رابطہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی بھی ہائی وے پر ٹریول کریں۔ شہر لاہور کی اگر ہم بات کریں موسم کی تو آئندہ بھی کچھ دنوں تک جو ہے دھند کی ہی صورتحال بتائی گئی ہے کہ شہر لاہور میں دھند کی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح رہے گی کہ رات کے اوقات میں جو ہے دھند کی ایک لہر سامنے آئے گی جو کہ صبح تک جو ہے دھند برقرار رہا کرے گی۔ ہم دیکھا کہ کل بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی یہی صورتحال رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ تقریباً 8 بج کے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، لیکن دھند کی شدت جو اس میں کمی کسی صورت جو ہے وہ فی الحال سامنے نہیں آ رہی۔ خاص طور پر جو لاہور کے سرحدی علاقے ہیں وہاں پر دھند کی صورتحال زیادہ جو ہے وہ ڈینس بتائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی جو ہے سردی کیونکہ نئی لہر لاہور میں داخل ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے دھند کے بھی سلسلہ اسی طرح کچھ روز تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں موسم اور درجہ حرارت کی تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں 16 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ بارش کا امکان تو موجود نہیں ہے، لیکن دھند کی صورتحال اس طرح سے کہ آئندہ بھی کچھ روز تک بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں دھند کی صورتحال اس طرح سے رہی کہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ شہریوں کو دھند کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوپہر کے اوقات میں دھند چھٹ جایا کرے گی، لیکن جو ہی جب ہم نے دیکھا کہ مڈ نائٹ کے پاس جو ہے وہ ٹائم پہنچتا ہے تو ایک پراپر دھند کی ایک ویو ہوتی ہے جو شہر لاہور میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کوشش کریں شہر کے اندر بھی شہریوں کو ہم نے دیکھا کافی زیادہ سفری مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس ٹائم پراپر شہر کی اتنی اہم شاہراہیں ایون کہ آپ شہر کی بڑی شاہراہوں کی اگر بات کریں تو اس میں ہم فیروزپور روڈ، کنال روڈ، مال روڈ اور دیگر اس طرح کی اہم شاہراہیں اگر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں پراپر دھند کے ڈیرے نظر آتے ہیں۔ شہریوں کو گزشتہ رات بھی سفری مشکلات کا کافی سامنا تھا کیونکہ شہر لاہور میں دھند کافی زیادہ جو ہے وہ ڈینس ہے۔ تو کوشش کریں کہ رات کے اوقات میں سفر سے بالکل گریز کریں۔ اگر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے تو دن کے اوقات میں اپنے سفر کو ترجیح دیں تاکہ کسی بھی قسم کے جو دوسروں کو جو ہے دوسروں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا آپ کی جان کو ہو سکتا ہے اس سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل کرنا بہت ضروری بتایا گیا ہے کہ جب دھند میں ٹریول کرتے ہیں تو گاڑی کی رفتار کو دھیمی رکھیں، سامنے والی گاڑی سے مناسب فاصلے اختیار کریں، فاگ لیمپس کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو حادثہ ہے یا اس طرح کی کوئی واقعہ اس سے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، مبین حیدر موسم کے حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سے سیالکوٹ موٹروے کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ موٹروے M2 کو لاہور سے اسلام آباد تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹرویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں خوراک کے معاملے پر حکومتی اپوزیشن ارکان کی جانب سے خوب تنقید کی گئی۔ حکومتی رکن ذوالفقار شاہ نے نئی گندم پالیسی پر سیکرٹری خوراک کو کھری کھری سنا دی۔ بولے اگر روٹی ہے تو ملک قائم ہے، روٹی نہ ہوئی تو لوگ ہمیں کھا جائیں گے۔ ملک وحید گندم کا سرکاری ریٹ کبھی 2800 تو کبھی 3000 روپے فی من بتاتے رہے۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے جم خانہ کلب کرائے کے معاملے پر کالی پٹی باندھ کر اسمبلی سیڑھیوں پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔
पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन रुकन असद अब्बास ने गैर मायारी और मुज़र सेहत जाली और मिलावट शुदा खुराक के मुकदमात पर हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। अपोजिशन रुकन राय मुर्तज़ा इकबाल ने दिफाही सिक्योरिटी की तरह फूड सिक्योरिटी को भी अहम तरीन करार दिया। हुकूमती रुकन जुल्फिकार शाह ने गंदम पॉलिसी पर सेक्रेटरी खुराक मलिक वहीद को खरी खरी सुना दी। गंदम जो है वो इस मुल्क की सिक्योरिटी है और आपका मुल्क गंदम के ऊपर कायम है। ये अगर किसी को वाम है कि किसी और चीज़ पे कायम है तो निकाल दे। अगर रोटी है तो आपका मुल्क कायम है। जिस दिन रोटी ना हुई उस दिन हमें लोग खा जाएंगे। 25 करोड़ अवाम है, 2050 में ये 50 करोड़ होंगे। आपको अंदाजा है 50 करोड़ को रोटी कैसे दी जाती है? अल्लाह पे तवक्कुल भी रखना चाहिए। कुछ हमने सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ वक्त लगता भी है। जो बिगड़ा हुआ निज़ाम था, जिस तरह आपने देखा कि 5200 रुपये अपना पे जब गंदम गई थी उस वक्त भी तो यही लोग थे ना। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम मैकेनिज्म बना रहे हैं, जो ही कोई बात बनती है तो फिर इंशाल्लाह वान के सामने पेश करेंगे। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने जिमखाना क्लब के किराए के मामले पर काली पट्टी बांधकर असेंबली सीढ़ियों पर एहतजाज की धमकी दे दी। बोले कि ऐवान के तकद्दुस के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान जिमखाना क्लब के किराए के मामला पर स्पेशल कमेटी की बेबसी का रोना रोते नजर आए। आज हम ये जो है वो करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर इसके बावजूद हमारी बात ना सुनी गई तो फिर मैं अगले इजलास में काली पट्टी बांध के इस हाउस की अंदर आने की बजाय सीढ़ियों में बैठूंगा। नीट क्लास का नेक्सस पाकिस्तान में कहीं देखना है जनाब स्पीकर, तो लाहौर जिमखाना से बड़ा नेक्सस आपको नजर नहीं आएगा। इतनी प्राइम लोकेशन पे एक कनाल का एक माह का किराया 50 पैसे है और वो सिक्का इस वक्त 50 पैसे का सिक्का शायद मिलता भी नहीं है। इजलास में हुकूमती रुकन मुमताज़ बेगम ने अंदरून लाहौर में खतरनाक अवारा कुत्तों का इंकिशाफ किया तो हुकूमती रुकन एहसन खान ने कत्लो गारत गरी पर कंगनपुर को कच्चे का इलाका करार दे दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास जुमा की सपहर 2 बजे तक मुलतवी कर। अब हुकूमत को लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मजीद ताखीर का सामना है। जनवरी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब मार्च में चलने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर 24 फरवरी को अलॉट किया जाएगा और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। 2018 में लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, जिसके बाद मास ट्रांजिट के अलावा कोई रूट फॉल नहीं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मजीद ताखीर का सामना है। 3 शहरों में ई बसें चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को मजीद 1 माह का वक्त दे दिया गया। जनवरी 2025 में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब मार्च 2025 में चलने का इम्कान है। पहले मरहले की 380 बसों में से 248 बसें लाहौर में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर की तारीख में 24 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने 10 सीनियर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। खालिद परवेज को एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर तैनात किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर आमिना ताहिर जैदी को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई हैं। ताहिर अकरम को एडिशनल सेक्रेटरी महकमे एक्साइज एंड नारकोटिक्स तैनात कर दिया गया है। इसी तरह समीर रब्बानी को एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साउथ पंजाब, सलमान तनवीर की खदमात MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सपोर्ट की गई हैं, जबकि गुलाम मुर्तज़ा को ADCR बहावलपुर तैनात कर दिया गया। सीमल मुश्ताक को डेप्यूटी सेक्रेटरी 2 ACS पंजाब, अब्दुल वहाब खान को डेप्यूटी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट लगा दिया गया है। इमरान नसीर को डेप्यूटी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद एजाज को डेप्यूटी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब तैनात किया गया है। LA में शोबा हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट की नाअहली। जोहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़िब प्लॉटों को कब्जा माफिया से वागुजार ना करवाया जा सका। ऑरेंज लिस्ट के तहत जोहर टाउन में 440 मुतनाज़िब प्लॉट, जबकि रेड लिस्ट के मुताबिक 350 से ज़ायद प्लॉटों पर कब्जा करके तामीरात की गई। जोहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़िब प्लाटों की लिस्ट बनाने के बाद कोई कार्रवाई न हो सकी। बड़ी मेहनत से इस इलाके में ज़ेरे कब्जा और मुतनाज़ा प्लाटों पर इमारतें तामीर करने की रिपोर्ट तैयार की गई। ताहम शोबा हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट नामजद करदा प्लाटों को वागुजार न करवा सकी। ऑरेंज लिस्ट में जोहर टाउन के 446 मुतनाज़ा प्लाटों की निशानदही की गई है, लेकिन एक भी प्लाट को वागुजार न करवाया गया। ऑरेंज लिस्ट के मुताबिक 24 मुतनाज़ा प्लाटों पर सिंगल स्टोरी तामीरात की गई हैं। 64
प्लाटों पर डबल स्टोरी इमारतें कब्जा माफिया के शिकंजे में हैं। 39 प्लाटों पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल बिल्डिंग तामीर की गईं। जोहर टाउन में बगैर किसी दस्तावेज के कब्जे किए जाने वाले प्लाटों की रेड लिस्ट भी तैयार की गई। रेड लिस्ट के मुताबिक 350 से ज्यादा प्लाटों पर कब्जा करके तामीरात की गई। LDA ने जो प्लॉट अलाट नहीं किए उनमें से 36 प्लाटों पर सिंगल स्टोरी तामीरात कर ली गई। बगैर किसी दस्तावेज के 220 प्लाटों पर कब्जा माफिया ने डबल स्टोरी और 118 इमारतों पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल तामीरात की। LDA के शुबा हाउसिंग 7 ने तामीरात वागुजार करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए, ताहम कोई कार्रवाई न की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लिबर्टी चौक के करीब प्लाजे में आग लग गई है। आग बिजली के ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए जाए वकुआ पर मौजूद है, जबकि रेस्क्यू की टीम ने मुल्हका पेट्रोल पंप और करीबी इमारतों को खाली भी करवा दिया है। आपको इस वक्त बताते चलें कि लिबर्टी चौक के करीब प्लाजे में आग लगी है। आग बिजली के ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग बुझाने के लिए जाए वकुआ पर भी मौजूद है। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रेस्क्यू की टीम ने मुल्हका पेट्रोल पंप और करीबी इमारतों को खाली भी करवा दिया है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है। लिबर्टी चौक के करीब प्लाजे में आग लगी है और आग लगने की वजह बिजली के ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए जाए वकुआ पर मौजूद है, जबकि रेस्क्यू की टीम ने मुल्हका पेट्रोल पंप और करीबी इमारतों को खाली भी करवा दिया है। आपको बताते चलें कि लिबर्टी चौक के करीब प्लाजे में आग लगी है। आग बिजली के ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, बताइए अब तक की अपडेट्स। बिल्कुल, लिबर्टी चौक के करीब प्लाजे में जो है वो आग भड़क उठने का वाक़या सामने आया है। आग बिजली के ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए जो है वो कोपर स्थित मौजूद है। रेस्क्यू 1122 की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए हिस्सा ले रही है। प्लाजे के करीब जो है पेट्रोल पंप रेस्क्यू की टीम ने पेट्रोल पंप और करीबी इमारतों को भी खाली करवा दिया ताकि किसी भारी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। इस वक्त जो है वो आग बुझाने का अमल जारी है। उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द से जल्द टीमें जो है वो आग बुझा लेंगी। अभी तक जो है कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन रेस्क्यू का कहना है क्योंकि आग की नौयत इस तरह की और इलाके की नौयत इस तरह की है कि कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो है वो चीजों को स्टेज पर लगाकर आग पे काबू पा लिया जाए। ठीक है मुबीन, साथ ही साथ ये भी अपडेट करते चलें कि आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है।